Hello everyone. So as discussed, as promised to you guys, this is the series of questions that we are going to cover on number system. So I hope you guys have gone through the part 3, I think, of the video series which covered divisibility and divisibility rules. So we have 25 questions on divisibility which we are going to cover in this video series. Link to download these questions, the link to PDF is in the description. So you guys can download the PDF from the description link. I would suggest you to first download the PDF, go through those questions, solve them, and then come and please check the video solution. It may not take you too much of time to go through the solutions if you've already solved them, but it is also important for you to understand if you have solved it in a right way or not. So the idea behind solving these questions that you should also solve and think in a similar way as I think while solving questions. And if you both think in the same way and we both have same knowledge, then definitely if I am getting 99 plus percentile, you will also get 99 plus percentile. So let's not waste time and start with the first question. So questions will range from medium level difficulty to easy level, and few questions will be of high like difficulty level, hard level of difficulty. So the first question is there is a number 9422P31Q, and it is asked whether it is divisible by 88. If it is divisible by 88, what is the value of P plus Q? So if the number is divisible by 88, we do not have any divisibility rule for 88. So what we will do, we'll break it into co-primes. So we have two co-primes, 11 and 8. Now we know the divisibility rule of 11 as well as 8. So 8 depends on last 3 digits. And if I see last 3 digits, there is only one variable. So it is better to first find the value of this variable which satisfies 8. So 31Q, if it is divisible by 8, we can see that 8 3 is 24, and then we have 7 here. So 7Q is a number which is divisible by 8. So the value that Q can take is 2 only, because we know that 8 into 9 is 72. So the value which Q will take will be 2. That is the only value that Q can take, since this number is divisible by 8. So let's replace Q by 2 here, and let's write Q equals to 2. Now applying divisibility rule of 11, odd and even. So first let's mark the positions. All the positions which are marked by these signs at the bottom are at odd position. So 2 plus 3 plus 0 plus 2 plus 9. These are odd numbered groups, minus all the values which are marked on the top. That is 1 plus P plus 2 plus 4. Let's solve them. So this is 9 plus 2, 11 plus 3, 14 plus 2, 16 minus 4 plus 2, 6 plus 1, 7 minus P. 16 minus 7 is 9. So 9 minus P is divisible by 11. It is possible only if P is equal to 9. So P equals to 9 and Q equals to 2. That gives us P plus Q as 11. So option number 3 is the correct for this particular question. I hope it was clear to all of you. This was important to break it into co-primes. Let's go to the next one. So next question says, find the value of x if the number 58215 x237 is divisible by 11. So let's write the number 58215 x237. Again marking odd and even positions. So this is how I mark the position. Let's group them. So 7 plus 2 plus 5 plus 2 plus 5. This is in one group, minus 3 plus x plus 1 plus 8 another group. Let's add them. 7 plus 2, 9 plus 5, 14 plus 2, 16 plus 5, 21 minus 8 plus 1, 9 plus 3, 12 minus x. This gives us 9 minus x. If this is divisible by 11, x has to take 9.
That is option number 1. So it was pretty straightforward. Let's go to the next one. So next question says, how many different values can x take if the number 2506x8 is divisible by 8? So we have number 2506x8 if it is divisible by 8. Now you know that divisibility rule of 8 is last 3 digits. So these numbers are of no use. So we are only interested in 6, 8, x and 8. Now you can solve by putting all the values of x, that is replacing x by 0 till 9 and dividing each number by 8 and seeing if it is divisible by 8 or not. Or what you can do, you can use property of splitting the remainder. So let's split this thing, splitting the numerator. So split this thing and we can write this thing as 600 plus 10x plus 8. Now if I have to divide all of these numbers by 8, so this will give me remainder as 8 7 is 56, 8 5 is 40, that is remainder as 0. This will also give me remainder as 0 and this thing will give me remainder as 2x. Now if it is divisible by 8, this x has to be either 0 or 4 or 8. These are the only values which this x can take if this 2x is divisible by 8. So the number of values that x can take will be 3. That is option number 4. So this was a better way of solving this question, that is splitting the numerator, and this is breaking it into the product of place value and face value. So if you have any doubt how we are splitting the numerator and all, you can refer a video on remainders. So the link is there. You can refer that video and you can clear your concepts regarding splitting the numerator. Let's go to the next one. So the next question is, if the number 425x36 is divisible by 72. So we have 425x36 is divisible by 72. Again, we do not have any divisibility rule for 72. So we will break it into co-primes, that is 9 and 8. Then the value that x can assume. Now divisibility rule of 9 is the simpler than 8. Divisibility rule of 9 is sum of digits. So let's do the sum of digits. So 6 plus 3, 9, cancel out. 5 plus 4, 9, cancel out. So we are left with 2 plus x, that gives us x is 7. Because 2 plus x has to be equal to 9. So now what we have to do, we just have to check whether if we replace x by 7, this number 736 is divisible by 8 or not. हमें सिर्फ इतना लिखना है. तो 736 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, क्या मिलेगा? 8 9 is 72, 8 2 is 16. That is, this number is divisible by 8 as well. So this whole number is divisible by 72 if we replace x by 7. So the value that x can assume is 7, option number 4. Let's go to the next one. So next question is, if 8537x54 is divisible by 3. So we have 8537x54 is divisible by 3. So divisibility rule of 3 is sum of digits. Let's do that. So 5 plus 4, 9, ignore it. 8 plus 5, 13. That gives us 4. 4 plus 3 we can ignore. So we can directly go to 7. 7 plus 4, 11. That gives us 2. So 2 plus x is divisible by 3. So this gives us x can take 1, then it can take 4, then it can take 7. So these are the three values that x can take. How we got these values? सबसे पहली वैल्यू हम देख लेंगे x की क्या होगी, 1 होगी. उसके बाद x will increase by 3. तो हम x को 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 plus 2 3. x को हम 4 रखेंगे तो 6, which is again divisible by 3. x को 7 रखेंगे तो 9, which is again divisible by 3. So there are three values which x can take, and again the answer is option number 4.
Let's go to the next one. So it is if 51062x4 is divisible by 12. So we have 51062x4 is divisible by 12. Again, we do not have any divisibility rule for 12. So we'll break it into co-primes, which is 4 into 3. Now we'll apply divisibility rule of 3 and divisibility rule of 4. So let's first do it for 3. So 5 plus 1, 6 cancels out, 6 cancels out, 2 plus 4 cancels out. So we are left with x plus 0, that is x. So x can take 0, 3, 6 and 9. These are the only values at which अगर x ने ये सारी values ली तो ये पूरा का पूरा number 3 से divisible. अब हमें 4 के लिए चेक करना है, that is last 2 digits. तो ये जो number बन रहा है ये 4 से divisible होना चाहिए. Let's check for all these digits. So 04 divisible है, 34 नहीं है, 64 divisible है, 94 नहीं है. So we have two values of x which are possible, that is 0 and 6, 3 or 9 possible नहीं है. So how many values can x can take? X can take two values, that is option number 3. Now this is a suggestion to all of you. Please at least go through all the values from 00 till 96 which are multiple of 4, because 4 की divisibility rule last 2 digits पर depend करती है. और अगर ये सारे नंबर एक बार देख लोगे like 0 0 0 4 0 8 12 16 20 24 28 and so on, so you can easily identify whether the number is divisible by 4 or not. Let's go to the next one. तो next question क्या है? It says when 1000 is added to 459x251 and the resulting number is divided by 11, the remainder is 8. Find x. तो question है 459x251 plus 1000. इसको जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें मिलता है 8. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले what most of the students will do, or 90% of the students will do, they'll add this 1 to x और वो बोलेंगे कि जो नया नंबर है वो ये है 459x plus 1 251. Now there is a problem with this step because you do not know whether x is 0 1 2 or what. तो अगर ये x 0 से लेके 8 तक होता तब तो ये चलेगा, ये डिजिट x plus 1 हो गई, यानी कि 0 पे 1, 8 पे 9 and so on. लेकिन अगर ये x 9 हुआ, in that case जब हम 1000 ऐड करेंगे तो ये 9 plus 1 यहाँ पे 10 नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 9 plus 1 10 0 हो जाएगा, ये 5 plus 1 6 और ये नंबर बन जाएगा. तो अगर you're trying to solve like this, then you first assume that x is from 0 to 8 and then put x as 9 and see if the number is divisible by 11 or not. तो ये दो स्टेप में करना चाहिए अगर ये ऐड करके कर रहे हो. अगर ये ऐड करके नहीं करना है, जो बेटर मेथड है वो ये होगा कि we use again splitting the numerator और हम इनको अलग अलग डिवाइड करना है. तो अगर हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, पोजीशन पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं सारे नंबर्स की. So we have 1 plus 2 plus 9 plus 4 as odd position and 5 plus x plus 5 as even position, plus 1000 है यहाँ पे भी कर लेते हैं. So plus 0 plus 0 minus 0 plus 1. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या है 9 plus 1 10 plus 2 12 plus 4 16 minus 10 minus x plus 0 minus 1. That gives us 6 minus 1 5 minus x. This number when divided by 11 gives us remainder as 8. तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है. That means this 5 minus x is equal to 8. That gives us x equals to minus 3. तो x को डिवाइड करने पे 11 से minus 3 रिमाइंडर मिल रहा है and we know नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट. अगर नेगेटिव रिमाइंडर नहीं पता है so again please go and watch concept video of remainder. लिंक फिर से पहले भी दिया हुआ था, I'll try to give it again और उसको एक बार प्लीज देखें.
तो अगर -3 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा -3 + 11 दैट इज 8. So the value that x can take will be 8, which is option number 4. So this is the right and better method to solve this question rather than assuming it to be x plus 1. Next question करते हैं. So next is how many possible pairs of values of x, y exist such that the number 4 to x, y 60 is divisible by 72. Again 72 की divisibility rule नहीं पता है, so we break it into co-prime 9 and 8. अब हम पहले 9 और 8 के लिए अलग अलग लगाते हैं, तो पहले 9 के लिए लगा लेते हैं. So it gives us 3 plus x plus y is divisible by 9. 9 से divisible होना है, that means x plus y is equal to either 6 or this is equal to 15. इससे बड़ी वैल्यू हो नहीं सकती है बिकॉज जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो 18 हो सकती है. और अगर इस सीरीज को हम बढ़ाएंगे 6, 15 तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 24 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. ये हम हटा देते हैं. So these are the two values that x plus y can take, either 6 or 15. Now let's apply for 8. तो 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट है यानी कि y60 should be divisible by 8. इसको ब्रेक कर लेते हैं तो 100y plus 60 should be divisible by 8. इसको सॉल्व करेंगे. So this is 8 1 जा 8, 20, 8 to the 16, that is 4y plus 8 7 जा 56, that is 4. This gives us 4y plus 1. This should be divisible by 8. और ये 8 से कब divisible होगा? जब ये y plus 1 एक even नंबर हो. बिकॉज ये 4 तो है हमारे पास. y plus 1 अगर 2 है या 2 का कोई भी मल्टीपल है तो 4 into that even number will be a multiple of 8. तो ये y plus 1 even नंबर होना चाहिए. even नंबर होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे पास समेशन रूल अगर याद हो तो 1 is odd, that means y को भी odd होना पड़ेगा. तो odd नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7 and 9. So these are the 5 values that y can take. और x plus y हमारे पास है 6 या फिर 15. Again the maximum value that x and y can take is 9. इनकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 9 हो सकती है. तो देखते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं. यहाँ पे ये है x, y and here we have x plus 1. y की वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 9. तो अगर y की वैल्यू 1 है और x और y मैक्सिमम 9 तक जा सकते हैं, अगर y की वैल्यू 1 है और x की 9 भी हो जाएगी तो भी 15 नहीं मिलेगा, यानी कि ये नहीं मिल सकता, ये मिल जाएगा. उसी तरीके से y की वैल्यू 3 है तो 9 plus 3 12, 15 नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा. y की वैल्यू 5 है, 9 plus 5 14, अभी भी ये नहीं मिलेगा, बट वी कैन गेट दिस. x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 7 है तो x की मिनिमम वैल्यू है 0, तो 0 plus 7 तब भी 6 नहीं होगा, तो दिस इज ऑफ नो यूज. But now we can have x greater than 0, which will give us 15. हमें 15 मिल जाएगा. x की वैल्यू जब 8 होगी तो 8 plus 7 15 मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल हो गया. और 9 है तो x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, x plus y की वैल्यू 15 हो सकती है, where x will be 6, तो ये पॉसिबल है. तो इसका मतलब y की वैल्यूज के लिए x की एक ही वैल्यू पॉसिबल हो रही है, दो वैल्यूज एक साथ पॉसिबल नहीं हो रही है. So how many possible pairs of x y exist? So we have 5 pairs. कौन से पेयर हैं? अगर हम यहाँ पे देखें तो 5, 3, then 1, then we have 7 and 8, and then we have 6. So 5, 1, 3, 3, 1, 5, 8, 7 and 6, 9. ये 5 पेयर पॉसिबल है. तो इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट दिस इज हाउ यू शुड हैव सॉल्व्ड इट. अगर सॉल्व करते समय कोई गड़बड़ी की है तो प्लीज एक बार इसको क्रॉस चेक कर लें.
Let's go to the next one. So what is the remainder when the number 5821x59x243? So we have 5821x59x243 is divided by 11, where x is any single digit whole number. Whole number है इसका मतलब जीरो भी हो सकता है. एंड ऑप्शन में दिया हुआ है नो यूनिक रिमाइंडर. तो बहुत सारे लोग इसको लगाने की कोशिश करेंगे कि x की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो नो यूनिक रिमाइंडर होगा. तो जल्दी में बहुत सारे लोग इसको मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे. बट इफ यू अप्लाई डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, तो हम इनको पोजीशन देते हैं पहले and we group them. So 3 plus 2 plus 9 plus x plus 2 plus 5 minus 4 plus x plus 5 plus 1 plus 8. Let's add them. So 5 plus 9, 14 plus 2, 16 plus 5, 21 plus x. यहाँ पे है 9 plus 1, 10 plus 8, 18. That is minus x minus 18. x और x कट गया. 21 minus 18 क्या देगा? 3 देगा. That is the remainder that we will get will be always 3 irrespective of x. क्योंकि x तो कट रहा है. इस नंबर को जब हमने 11 से डिवाइड किया तो हमें 3 रिमाइंडर मिल रहा है. तो x की वैल्यू पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. x की वैल्यू क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आंसर में. So the correct answer is 3. Let's go to the next one. So next question is, if the number 34222, so we have 3422213xy is divided by 99. Now we can do two things. We have to find value of x plus y. तो यहाँ पे दो चीजें की जा सकती हैं. एक, हम इसको ब्रेक कर दें 11 और 9 में, फिर 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, x और y की वैल्यू फाइंड करें, फिर उसको x plus y करें. So this is one way. The other way is, let's apply divisibility rule of 99. तो 99 क्या है? 99 is 10 raised to 2 minus 1. दो 9 है तो n की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी. और ये रूल क्या कहता है? This is sum of digits rule. अगर भूल रहे हो तो फिर से I'm repeating, go and revise the concepts. अब हमको दो डिजिट्स के ग्रुप बनाने हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड और फिर इनको सबको जोड़ देना. सो वी हैव 3, 42, 22, 13 एंड xy. इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3 plus 2, 5 plus 2, 7 plus 3, 10, 1 goes as carry, 4 plus 1, 5 plus 2, 7 plus 1, 8. So 80 plus xy is divisible by 99. That gives us xy as 19. So this is the only value possible for xy such that these two numbers are divisible by 99. तो हमें क्या निकालना है? हमें x plus y निकालना है. तो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 9 हो गई और x plus y की वैल्यू ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 10 हो गई. इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो नहीं सकती है बिकॉज 99 और फिर जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 198 एंड 198 के लिए 2 डिजिट नंबर हम ऐड नहीं करेंगे. Then we will add 3 digit number to 80 to make the sum as 198. तो इसका आंसर हो गया 10. Let's go to the next one. So next question क्या कह रहा है? Next is the difference between a 2 digit number and the sum of its digit is always a multiple of. तो 2 digit number a b नहीं लिखेंगे, we'll write it as 10a plus b क्योंकि a b कोई समझ नहीं पाएगा. जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो AB we cannot work. So always whenever you have to assume a number, always assume as a product of place value and face value. तो ये 2 digit number है और इसकी sum of digits का डिफरेंस लेना यानी कि minus a plus b. तो क्या है? 10a minus a plus b minus b. ये कैंसिल हो गया और ये क्या है? 9 है. इसका मतलब हमेशा मल्टीपल किसका होगा? 9. So this is question number 11. बहुत ही सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था. बस इस तरीके से नंबर को एज्यूम करना है. प्लीज ध्यान से नोट करें. नेक्स्ट इज
for how many n is n minus 1 factorial divisible by n where n is natural number less than or equal to 10. यानी कि n minus 1 factorial n से हम डिवाइड कर रहे हैं n की कितनी वैल्यूज के लिए ये डिविजिबल होगा. तो डिवीजन को ध्यान से सोचो. डिवीजन क्या था? डिवीजन वाज कैंसलिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. और अगर हम पूरा का पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल कर लेते हैं तो रिमाइंडर 0 हो जाता है और नंबर डिविजिबल हो जाता है. तो अब यहाँ पे क्या है? n minus 1 factorial क्या है? This is 1 into 2 into 3 into dot 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 till n minus 1. This is n minus 1 factorial. और इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? n से कर रहे हैं. तो अगर n एक प्राइम नंबर है, थिंक ऑफ इट, इफ n इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही बार आता है. जब सबसे पहली बार आता है उससे पहले कभी प्राइम नंबर नहीं आया हुआ होता है, राइट? यानी कि जैसे 3 है तो 3 के मल्टीपल मिलेंगे बट 3 के नीचे कोई फैक्टर नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट 1. 7 है तो 7 का कोई फैक्टर नहीं मिलेगा. तो उसी तरीके से अगर n प्राइम नंबर है तो इन किसी भी नंबर में n नहीं आया होगा, यानी कि हम n को कैंसिल नहीं कर सकते हैं. तो 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं? सो वी हैव 2, 3, 5 एंड 7. यानी कि ये चार वैल्यूज n नहीं ले सकता है. ये तो पहला हो गया. उसके बाद इसका मतलब अगर ये n 10 की जगह 20 होता, 100 होता, 200 होता, तो हमें क्या निकालना होता? हमें प्राइम नंबर्स निकालने होते हैं, बिकॉज प्राइम नंबर पे ये कभी भी कैंसिल नहीं होगा. कॉम्पोजिट पे कैंसिल हो जाएगा, सारे कॉम्पोजिट पे कैंसिल हो जाएगा एक्सेप्ट n equals to 4. This is the only exception for composite number. अगर यहाँ पे रख के देखें तो हमें क्या मिल रहा है? 3 factorial divided by 4, that is 3 into 2 into 1, और नीचे है हमारे पास 2 into 2. तो एक 2 तो कैंसिल हो जा रहा है लेकिन एक 2 अभी भी बच रहा है. So this composite number is the only exception. तो क्वेश्चन था for how many n is n minus 1 factorial divisible by n where n is natural number less than or equal to 10. यानी कि n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक हो सकती है, जिसमें हमने देखा कि 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर हैं तो वो नहीं हो सकते. यानी कि 10 में से हमने ये चार नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए और एक कॉम्पोजिट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया which is 4. तो क्या बचा? 10 minus 5, that is 5 numbers. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 values of n are possible such that n minus 1 factorial is divisible by n. तो ये एक important question था because ये जो exception है ये आपको सबको याद रखना है. So this thing is not divisible when n is a prime number and for only one exception, that is n equals to 4. Let's go to the next one. तो next question है which of the following numbers is divisible by 40 and 72? तो 40 से divisible होना है यानी कि 8 into 5, 8 से होना है, 5 से होना है, और 72 यानी कि 8 into 9, तो अगेन 8 से होना है और 9 से होना है. 5 से सबसे पहले चेक करते हैं. 5 के लिए क्या होता है? यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो फिर 5 हो. तो इन सारे नंबर में यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब 5 से तो सब डिविजिबल है. नेक्स्ट वी कैन चेक फॉर 9. 9 का क्या है? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी 9. तो पहले में देखते हैं 7560. दिस इज द फर्स्ट वन. 7560 में क्या है? 7 plus 5 12 which is 3. 3 plus 6 9. तो ये नंबर वैलिड है. दूसरा है 3840. 8 plus 3 11, that is 2 plus 4 6. तो ये नहीं डिविजिबल है, तो ये बेकार हो गया, तो इसको तो एलिमिनेट कर देते हैं यहीं पे. Then we have 5670. 7 plus 6 13, that is 4 plus 5 9, possible है. Then we have 3780. 7 plus 3 10, that is 1 plus 8 9, that is again possible. तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास बची और 9 भी सॉर्टेड. अब 8 से चेक करना है. 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट 3 डिजिट्स. सो दिस इज 8 7 जा 56, दैट इज वैलिड. तो अगर ये ही हमें मिल गया और ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन तीनों चीजों से डिविजिबल है, 8 से भी है, 5 से भी है और 9 से भी है, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए. So if you are confident, you should just skip it and move to the next one rather than checking for third and fourth.
लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सो दिस 670 अगर डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो 8 into 64 30 बचेगा। दैट मींस दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो ये बेकार है। देन वी हैव 780, तो उसको देख लेते हैं। 8 9 से 72, 60 बचेगा, अगेन नॉट डिविजिबल, तो ये भी बेकार है। दैट मींस दैट आवर आंसर और ऑप्शन नंबर 17560 इज द राइट वन। नेक्स्ट आते हैं। So next question is, which of the following number is divisible by both 2 and 9? 2 से भी divisible हो और 9 से भी divisible हो। तो 2 के लिए तो यूनिट डिजिट हमें देखनी है, इवन होनी चाहिए। 8 है, 6 है, 2 है और 1 है, तो ये तो बेकार हो गया अभी से। For 9 we need to do sum of digits. So 7 3 4 8, 7 plus 3 10, that is 1 plus 4 5 plus 8 13, that is 4, बेकार है। Then we have 2 4 3 6, 4 plus 2 6 plus 3 9 plus 6, या फिर 9 only, बेकार है। 4 0 3 2 ही बचा, तो यही सही होना चाहिए। If we see 4 plus 3 7 plus 2 9, that is it is divisible by both 9 and 2, तो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आते हैं। So next question says, if the 8-digit number 5668 x25y is divisible by 48, तो 48 से divisible है, यानी कि हम इसको 8 into 6 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? Because 8 and 6 are not co-prime. So what we will take it? We'll take it as 16 into 3. हमको दोनों की divisibility rule पता है, हमें 16 की भी divisibility rule पता है और 3 की भी divisibility rule पता है। तो पहले 3 की divisibility rule से चेक करते हैं। तो ये 6 और 6 बेकार है। 5 plus 2 7 plus 8 15, 5 plus 1 6, ये भी बेकार है। 5 बचा। So 5 plus x plus y, क्योंकि ये नंबर डिविजिबल है 48 से, तो ये जो भी है ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसको भी अगर हम फर्दर डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 2 plus x plus y. That means this x plus y has to be 1 4 7 10 13 16, इतनी सारी वैल्यू ये x plus y ले सकता है। नेक्स्ट इज it should be divisible by 16 as well. 16 का मतलब क्या है? x25y should be divisible by 16, लास्ट 4 डिजिट। तो अब लास्ट 4 डिजिट अगर कोई नंबर 16 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। तो पहले तो हम लोग y को देख लेते हैं। y कैन टेक ओनली इवन वैल्यूज बिकॉज ये 2 से डिविजिबल है। फिर 5y, ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो y क्या ले सकता है? 4 × 4, एंड यहाँ पे 1y बचा। दैट मींस y कैन टेक 2, y कैन टेक 6, and these are the two values that y can take. तो 52 डिविजिबल है और 56 डिविजिबल, तो y की दो वैल्यूज पॉसिबल है फॉर 4। अब हम 8 पे जाते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, 252 और 256। 256 को देखो तो 8 3 24 8 16, यानी कि 6 पॉसिबल है। अगर 252 को देखो तो 8 3 24 12 नॉट पॉसिबल। दैट मींस y की वैल्यू हमें पता चल गई क्या है? y is 6, तो नंबर है x256 और ये नंबर 16 से डिविजिबल होना चाहिए। x plus y की वैल्यू हमारे पास 1 से लेके 16 तक है और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x plus y। तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट इट एज 1000x plus 256 and we can divide it individually by 16। तो यहाँ पे क्या होगा? 16 1 16, 16 6 96, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर हो गया 0। इसको चेक करते हैं। तो 16 6 96 40, 16 2 32, दैट इज 8, तो 8x हमारे पास बचा। अगर 8x को 16 से डिविजिबल होना है, so x can be 0, x can be 2, x can be 4, x can be 6, x can be 8। ये 5 वैल्यूज x ले सकता है।
हमें क्या निकालना है, हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई निकालना है। y की वैल्यू हमें पता है 6 है और x की ये वैल्यूज हैं। सो x है 0, 2, 4, 6 and 8, y is 6, that gives us x plus y as 6, 8, 10, 12 and 14। x plus y की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई थी जब हमने 3 के लिए निकाला था, तो हमारे पास क्या क्या था, 1, 4, 7, 10, 13 एंड 16। इनसे मैच कर लेते हैं। तो 6 तो है नहीं तो बेकार है, 8 भी नहीं है ये भी बेकार है, 10 पॉसिबल है बिकॉज 10 यहाँ पे भी है और 10 यहाँ पे भी है। सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 10। तो थोड़ा घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन था। एक बार यहाँ से वैल्यू निकाली, फिर x और y की वैल्यू निकाली, फिर ये देखा कि दोनों में मैच कौन सी वैल्यू कर रहे हैं। बट अगर डिविजिबिलिटी रूल ठीक से पता है, सो अगेन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, find the sum of all the possible distinct remainders which are obtained when cubes of prime numbers are divided by 6। तो प्राइम नंबर के क्यूब्स को डिवाइड करना है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। एंड वी नो दैट यहां से बड़ा जो भी प्राइम नंबर है वो या तो 6n plus 1 फॉर्म का होगा या फिर 6n minus 1 फॉर्म का होगा। तो पहले तो इन दोनों के लिए मैनुअली निकाल लेते हैं। तो 2 का क्यूब हो गया 8 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर इज 2। 3 का क्यूब हो गया 27 डिवाइडेड बाय 6 इज 3। तो ये दो रिमाइंडर तो हमारे पास आ गए, दैट इज 3 प्लस 2। अब इसके आगे के जितने भी रिमाइंडर्स हैं, अगर 6n plus 1 फॉर्म का नंबर है, सो इट विल गिव अस 6n plus 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 6। तो ये क्या देगा, ये 1 देगा रिमाइंडर हमेशा, कोई भी नंबर हो। फॉर एग्जांपल 7 है, 13 है, बिकॉज अगर हम 7 क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्यूब बाय 6। सो दिस विल ऑलवेज गिव अस 1 एज रिमाइंडर। ऑल द नंबर्स ऑफ दिस फॉर्म 6n minus 1 क्यूब बाय 6 will give us remainder as -1 का क्यूब बाय 6, that is -1। तो यहाँ पे हमें +1 मिल रहा है, यहाँ पे हमें -1 मिल रहा है। तो अब इन दोनों को अगर हम देखें तो -1 नेगेटिव रिमाइंडर है, इसके करस्पॉन्डिंग 6 के केस में पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5। तो टोटल कितने रिमाइंडर हो गए डिस्टिंक्ट, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स। तो सम कर लेते हैं, 5 plus 3, 8 plus 2, 10 plus 1, 11। That is option number 2 is the correct answer for this particular question. नेक्स्ट आते हैं, so the next question is the difference of any 40 digit number and its reverse is always divisible by, and then we have few options। तो इसको 40 digit नंबर की जगह एक छोटे से नंबर में देख लेते हैं, क्योंकि 40 इज अ इवन नंबर, तो हम 4 डिजिट इवन नंबर लेके देखते हैं। 4 डिजिट इवन नंबर लेट्स से ABCD है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स विल बी DCBA। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 9 है, 11 है, 99 है और 198 है। 99 is 9 into 11 and 198 is 9 into 11 into 2। 9, अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंस निकालने को बोला है, यानी कि 4 डिजिट नंबर और उसका रिवर्स का डिफरेंस, दैट मींस ABCD minus DCBA। 9 के केस में क्या होता है, 9 के केस में सम ऑफ डिजिट्स होता है, और 11 के केस में क्या होता है, 11 के केस में ऑल्टरनेट सम एंड डिफरेंस ऑफ डिजिट्स होता है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं 9 के केस में, तो 9 के केस में यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, A plus B plus C plus D, ऐसे सॉल्व करते हैं। और इधर क्या मिलेगा, माइनस ऑफ D plus C plus B plus A। अगर इनको दोनों को देखो तो नेट हमें क्या मिल रहा है, A plus B plus C plus D
माइनस डी माइनस सी माइनस बी माइनस ए, यानी कि सब कुछ कट जा रहा है। तो चाहे ये 4 डिजिट का नंबर हो या 40 डिजिट का नंबर हो, अगर हम उसका रिवर्स करेंगे तो वो 9 से डिविजिबल होगा। सो एनी n डिजिट नंबर माइनस रिवर्स ऑफ नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। ये तो एक हमारा थ्योरम हो। नेक्स्ट वी विल गो फॉर 11। तो ये 9 के लिए अगर समझ में आ गया तो 11 के लिए देखते हैं। 11 के लिए क्या करते हैं हम लोग, पोजीशन करते हैं। तो पोजीशन कर दिया, ये भी है, इसको भी पोजीशन कर दिया। तो क्या मिला, d प्लस ए माइनस d प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या मिला, a प्लस सी माइनस b प्लस b। यू कैन सी दैट b प्लस d यहाँ पे पॉजिटिव में है, माइनस a प्लस सी, इधर से क्या मिला, माइनस a प्लस सी प्लस b प्लस d। तो अब ये क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों जुड़ जा रहे हैं और ये दोनों के दोनों जुड़ जा रहे हैं, तो ये कैंसिल होंगे या ये नेट हमें 0 देगा या 11 देगा या क्या देगा, ये हमें पता नहीं है, ये हम लोग बता नहीं सकते हैं। सो इफ यू सी, अगर ये माइनस हम नहीं कर रहे होते तो इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी है। यहाँ पे जो नंबर, इफ यू 4 डिजिट नंबर के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जिस नंबर की या जिस डिजिट की पोजीशन ऑड थी, उस डिजिट की पोजीशन यहाँ पे क्या हो गई, इवन हो गई। तो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। विद दिस माइनस साइन इट बिकम्स पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, तो कैंसलिंग कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे जहां जहां पे भी 11 लिखा है, 11 बट नॉट ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 बट नॉट ऑलवेज बाय 11। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जो 4 डिजिट के लिए है वही एक्सटेंड करके हम 40 डिजिट पे भी ले जा सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी डिजिट यहाँ पे ऑड पोजीशन पे है वो यहाँ पे इवन पोजीशन पे आ जा रही है, और जब हम उसको माइनस कर रहे हैं तो सब कैंसिल होता चला जा रहा है। सॉरी कैंसिल नहीं हो रहा है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो हमें पता ही नहीं है कि ये डिविजिबल होगा या डिविजिबल नहीं होगा बाय 11। Let's go to the next one. तो next question है, the remainders of 5x plus 4y and 4x plus 5y when divided by 9 are 4 and 5 respectively। तो अब हम यहाँ पे ये यूज करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो पहले बोल रहा है कि 5x plus 4y को जब हमने 9 से डिवाइड किया, लेट्स से कोशेंट इज m, तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 4 मिला। सो आई कैन राइट दिस नंबर लाइक दिस। फिर कह रहा है कि अगर हम 4x plus 5y को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कोशेंट विल बी चेंज्ड। पिछली बार m था तो अभी क्या हो जाएगा, लेट्स से n हो जाएगा। इस बार भी डिवाइड 9 से ही कर रहे हैं और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब हमें बताना है कि जब x माइनस वाई को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, अगर हम इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 5x माइनस x माइनस माइनस माइनस, सो दिस विल गिव अस x, दिस विल गिव अस माइनस y, दिस विल गिव अस 9m माइनस n, और ये क्या देगा, -1। तो x माइनस वाई को अगर हमें 9 से डिवाइड करना है तो हम इन दोनों को अलग अलग 9 से डिवाइड कर सकते हैं। दिस विल गिव मी रिमाइंडर एज 0 एंड दिस थिंग विल गिव मी रिमाइंडर एज -1। -1 रिमाइंडर का मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर 8, सो द आंसर विल बी 8। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट करते हैं। So next question है,
A, B and C are digits and 64 A, 3 B, 6 C is divisible by 360. How many values can A comma B take? तो नंबर है 64 A, 3 B, 6 C और ये डिविजिबल किससे है? 360 से। 360 से डिविजिबल है, यानी कि यहाँ पे अगर 0 है दैट मीन्स यहाँ पे C की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए। तो हमें पहले ही पता है कि C equals to 0, so let's change it to 64 A, 3 B, 6 0। अब 360 से डिविजिबल है, यानी कि 36 into 5 into 2, 36 क्या है? 9 into 4 into 5 into 2, so we have 9 into 8 into 5। 5 से डिविजिबल होना ही होना है, बिकॉज हमने C को 0 कर दिया, तो ये तो सॉल्व हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 9 और 8 के लिए देखना है। पहले 9 के लिए देख लेते हैं। सम ऑफ डिजिट्स, तो 6 plus 3 9 होता है, कैंसिल हो गया। 6 plus 4 10, that gives us 1। तो 1 plus A plus B should be equal to 9, that gives us A plus B will be equal to 8 या फिर 17। ये दो वैल्यूज A plus B हमारे ले सकते हैं। नेक्स्ट है 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, यानी कि B60 should be divisible by 8। इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सेम चीज, तो 100B plus 60, this gives us remainder as 4, और ये क्या रिमाइंडर देगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, that is 4B। तो ये 4B plus 4, that becomes 4B plus 1। अब अगर ये पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब B plus 1 एक इवन नंबर होगा, और इवन नंबर होने के लिए B has to be a odd number, तो B can take values 1 3 5 7 and 9, and A plus B can take values 8 and 17। तो अब हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। We have A, we have B and we have A plus B। It can take 8 और 17। B के पास वैल्यूज हैं 1 3 5 7 एंड 9, ये 5 वैल्यूज हैं। अब अगर हम देखें तो A प्लस B में दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती हैं? मिनिमम 0 और मैक्सिमम 9। सो इफ B इज 1, A प्लस B का सम 17 नहीं हो सकता। 17 कब हो सकता है? जब मिनिमम B की वैल्यू कितनी हो? तो A मैक्सिमम जा सकता है 9 तक, 17 minus 9 is 8। तो अगर B की वैल्यू 8 के बराबर होगी तभी हमारे पास 17 पॉसिबल है, यानी कि सिर्फ 9 वाले केस में 17 पॉसिबल है। तो इन चारों केसेस में तो ये पॉसिबल है नहीं, और 8 पॉसिबल है, 7 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 1। व्हाट अबाउट 9? 9 के केस में 8 पॉसिबल नहीं है बट 17 पॉसिबल है। 8 क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज 9 की B की वैल्यू अगर 9 हो गई तो A कैनॉट टेक अ नेगेटिव वैल्यू, तो ये बेकार हो गया, एंड दिस इज पॉसिबल। इन दैट केस A विल बी 8। तो ये 5 वैल्यूज हमें पॉसिबल मिल रही है। तो कितनी वैल्यूज A, B की हो गई? ये 5 वैल्यूज हो गई, एंड ऑप्शन है फोर्थ, व्हिच इज करेक्ट आंसर इज 5 वैल्यूज। So let's go to the next one, that is question number 20th। So question number 20th says, if n is a positive integer greater than 1, n raised to 5 minus n is always divisible by। तो n is greater than 1, तो सबसे पहले हम लोग 2 के लिए चेक कर लेते हैं। 2 के लिए क्या मिलेगा हमें? 2 raised to 5 is 32 minus 2, that is 30। तो अगर n raised to 5 minus n is always divisible, तो n की वैल्यू अगर 2 है तो जो भी आएगा उससे भी ये 30 भी इन नंबरों में से डिविजिबल होना चाहिए। तो 30 ना 7 से डिविजिबल है, ना 11 से डिविजिबल है, ना 13 से डिविजिबल है। So the only number possible is option number 1, that is 5।
ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस में आप एक्सपैंड करके भी लगा सकते हो या फिर आप हिडन ट्रायल कर सकते हो और एक छोटी वैल्यू को लेके देख सकते हो कि वहां पे कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, एंड दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है, so next is what is the remainder when 100 digit number formed by repeatedly writing 1 2 3 4, that is 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हम लोग किस साइड से लिख रहे हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं, यानी कि इस साइड से लिख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये पूरा हमने कितने डिजिट का नंबर बनाया, 100 डिजिट का नंबर बनाया है, and we need to find out whether this number is divisible by 7 or not। तो 7 के लिए हम लोग कौन सी divisibility rule यूज करेंगे, we'll use divisibility rule of 10 raised to 3 plus 1, यानी कि तीन डिजिट्स के ग्रुप बनाने हैं from the right hand side and so on। सबसे पहला हमारे पास 100 डिजिट का नंबर है और ये नंबर कैसे बन रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सबसे पहला काम क्या करना है इस क्वेश्चन को या इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, हमें क्योंकि लास्ट डिजिट्स पता ही नहीं है कि नंबर एंड कहां पे हो रहा है, सो वी कैन नॉट नो द ग्रुप्स। नंबर 1 2 3 4 पे एंड होगा कि नहीं होगा, वी स्टिल डू नॉट नो। तो सबसे पहले हमें देखना है ये नंबर की जो लास्ट डिजिट्स है वो क्या है। तो ये जो एक ग्रुप है ये कितने डिजिट्स का है, 4 डिजिट्स का। तो 100 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा 25। दैट मींस वी आर यूजिंग 25 कंप्लीट ग्रुप्स। इसका मतलब लास्ट में भी ये 1 2 3 4 पे ही एंड हो रहा है एंड सो ऑन। तो एक चीज तो पहले क्लियर हो गई। बहुत बार क्या होता है कि जो लास्ट की डिजिट्स हैं वो 1 3 4 नहीं होंगे, हो सकता है वो नंबर 1 2 पे एंड हो जाए या समथिंग लाइक दैट। तो ये जो पहला स्टेप हमने किया ये बहुत इंपॉर्टेंट था, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लास्ट डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इफ इट इज नॉट गिवन। तो अब हमें पता चल गया कि ये नंबर है। अब हमें ग्रुप बनाना है और 10 raised to n plus 1 रूल क्या है, ऑल्टरनेट सम एंड डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। तो 100 डिजिट्स हैं तो कितने ग्रुप बन जाएंगे, एक ग्रुप में 3 डिजिट्स चाहिए, दैट मींस 33 कंप्लीट ग्रुप्स एंड 1 रिमाइंडर है, सो 1 इनकम्प्लीट ग्रुप विद 1 एलिमेंट। और जो इनकम्प्लीट ग्रुप होता है वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट ग्रुप होता है, तो जो इनकम्प्लीट ग्रुप में एलिमेंट है दैट इज 1। नाउ टोटल ग्रुप्स हमारे पास कितने हो गए, टोटल ग्रुप्स हो गए हमारे पास 34, दैट इज 17 ऑड एंड 17 इवन। सिंस वी आर स्टार्टिंग विद ऑड तो जो एंड होगा वो किस पे एंड होगा, इवन पे होगा। तो जो ये 1 है ये हमारा इवन ग्रुप है। अब हम ग्रुप बनाना शुरू करते हैं। सो 2 3 4 पहला ग्रुप, 3 4 1 दूसरा ग्रुप, 4 1 2 तीसरा ग्रुप, 1 2 3 चौथा ग्रुप। उसके बाद अगर हम 2 3 नंबर और लिखें, so now you can see फिर से हमें 2 3 4 मिला और इसकी पोजीशन और इस 2 3 4 की पोजीशन भी सेम। तो जैसे ही हमें ऐसा ग्रुप फिर से मिलता है, जब हमने ग्रुप बनाने शुरू किए तो जैसे ही हमें फिर से ओरिजिनल पोजीशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये ऑड पोजीशन पे है तो हमें ऑड पोजीशन पे ही चाहिए। तो हमें जैसे ही 2 3 4 ऑड पोजीशन पे मिलेगा, हमको ये पता चल गया कि ये पैटर्न जो है, दिस पैटर्न इज गोइंग टू बी रिपीटेड। यू कैन सी 2 3 4 फिर 3 4 1 फिर 4 1 2 फिर 1 2 3 फिर 2 3 4 और इस तरीके से ये पैटर्न जो है ये रिपीट होता है। अब हमारे पास कितने पैटर्न इस तरीके के मिलेंगे, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक पैटर्न में कितने नंबर्स हमने यूज किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। टोटल डिजिट्स हमारे पास कितनी थी, 100। 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 कंप्लीट ग्रुप्स
एंड 4 रिमाइंडर मिला है, यानी कि जो इनकम्प्लीट ग्रुप है उसमें 4 एलिमेंट्स। तो 4 एलिमेंट्स इस साइड से अगर हम देखें तो एक 1 हो गया और एक 2 3 4 हो गया। इसके पहले जितना भी है ये हमारे पास 6 कंप्लीट ग्रुप्स में है। तो जैसा ये ग्रुप बिहेव करेगा वैसे सेकंड वाला, वैसे थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला एंड सिक्स्थ वाला। तो इस ग्रुप को अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 234 प्लस 412 ये एक साइड रहेगा, माइनस 341 प्लस 123, दैट गिव्स अस, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, दैट गिव्स अस 4 plus 2 6, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6 minus 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 3 plus 1 4, that gives us 2 8 1। तो जो ये एक ग्रुप है इसने हमें क्या आउटपुट दिया, 182। इस तरीके के कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, 6 ग्रुप्स थे। तो इन 6 ग्रुप से हमें क्या मिला, 6 into 182। ये तो क्लियर हो गया कि हमें हमारे पास 6 into 182 है। अब हमारे पास लास्ट के ये दो ग्रुप्स बच रहे हैं, ये वाला ऑड पोजीशन पे है और ये वाला इवन पोजीशन पे है, ये हमें पहले से पता है। तो 6 into 182 प्लस ऑड वाला दैट इज 234 माइनस इवन दैट गिव्स अस 6 into 182 प्लस 233, और इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे बिकॉज हमें किससे रिमाइंडर बताना है, 7 से बताना है। So now what people can do, they can multiply this thing and then solve it. But क्यों multiply करना है? Because we know that we can apply splitting the numerator concept. तो 6 क्या रिमाइंडर देगा? 6 will give us -1 as remainder. 182 को डिवाइड करते हैं 7 से तो क्या मिलेगा? 7 2 जा 14, 7 6 जा 48, और 7 6 जा 42. That means 0 plus 233 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 3 जा 21, 23, 7 3 जा 21, that is 2 as remainder। तो ये क्या हो जाएगा नेट, 0 plus 2 that is 2 as my final remainder। तो अगर मुझे 2 रिमाइंडर मिल रहा है so I can write, जो रिमाइंडर मुझे यहाँ पे मिलेगा वही रिमाइंडर मुझे जब मैं इस पूरे नंबर को 7 से डिवाइड करूंगा तो मिलेगा। So the answer to this question is 2। I hope this is clear to all of you। ये 10 raised to n plus 1 फॉर्म वाले क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन था। दो तीन क्वेश्चन 7 की डिविजिबिलिटी वाले मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो पे कराए थे, ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट या डिफरेंट वेरिएंट था बिकॉज यहाँ पे 4 डिजिट्स थी और एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा था। सो आई थॉट ऑफ गिविंग दैट एज आल्सो इन द एग्जांपल सीरीज। ये है क्वेश्चन नंबर 22। दिस सेज let n equals to 72 raised to 3 minus 55 raised to 3 minus 17 raised to 3, n is divisible by, और ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो 4 ऑप्शन में हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स हैं, 3 है, 7 है, 13 है और 17। सबसे पहले 3 के लिए चेक कर लेते हैं बिकॉज 3 is the smallest one। नंबर है हमारे पास 72 raised to 3 minus 55 raised to 3 minus 17 raised to 3। So 7 plus 2 9, divisible ही हो जाएगा, 0 remainder। 5 plus 5 10, that means this thing will give us 1 as remainder। ये क्या है, 7 plus 1 8, that means 2, that means this will give us 2 raised to 3 8। तो finally हमें क्या remainder मिलेगा, 2 मिलेगा। minus 1 minus 2 is minus 3, that means it is divisible by 3। तो 3 से तो divisible है, इसका मतलब जिन ऑप्शंस में 3 नहीं है वो ऑप्शंस तो गलत ही हो गए। सो दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। या तो ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। तो इसका मतलब अब हमें चेक करना है 13 से और 17 से, इससे चेक करने की जरूरत नहीं है। Now if I check for let's say 17 because यहाँ पे 17 पहले से ही है, तो अगर हम 17 के लिए चेक करें तो ये तो हमें 0 रिमाइंडर दे देगा। What about this thing? 17 4 जा 68 होता है, so this thing will give us 4 raised to 3 as remainder, and 17 3 जा 51, so this will also give us 4 as the remainder। तो ये और ये कट जाएंगे, 0 plus 0 that is 0। इसका मतलब 17 से भी divisible है, that means
ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 3 and 17 इज द करेक्ट वन। 13 से चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, एंड इफ यू गाइस विल चेक यू विल फाइंड रिमाइंडर विद 13। अगर 13 से हम चेक करें तो दिस थिंग विल गिव अस 13 5 is 65 that is 7 cube minus 13 4 is 52 that is 3 cube minus 13 1 is 13 that is 4 cube। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे एंड एवरीथिंग, सो विल गेट समथिंग as remainder which won't be equal to 0। so 7 cube क्या है 343 minus 3 cube which is 27 minus 4 cube which is 64 that gives us 343 minus 7 plus 4 11 and 91, this gives us 2, 14 minus 9 is 5 and 252 divided by 13। so if I see the quotient is 1, 13 1 is 13, 7 plus 5 12 that is 122, 39 is 117, that means this will give us remainder as 5। तो 13 से हमें क्या रिमाइंडर दे रहा है 5 रिमाइंडर दे रहा है। 7 से हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज 7 हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो ये भी इग्नोर हो गया बिकॉज 13 नहीं है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोथ 3 and 17 and this is the question which was asked in CAT 2000। that means इस तरीके के इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और you guys can easily do them। in the whole divisibility we use lot of concept, two major concepts, one was splitting the numerator and the second was negative remainders। तो अगर ये नहीं आते हैं please go and watch initial portion of remainders concept video, link is there and you can see that और उससे clarity मिल जाएगी। next question, so 2 raised to 3n minus 1 for all natural numbers n is always divisible by। तो मेरे पास है क्वेश्चन 2 raised to 3n minus 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 raised to 3 that is 8n minus 1, 8 raised to n minus 1। out of 2 3 5 7 2 से भी ये divisible है, इसका मतलब -1 रिमाइंडर देगा। 3 in this case will give us -1 raised to n minus 1, so it is dependent on n। अगर n even है तब तो divisible होगी 3 से ये नंबर, अगर n divisible even नहीं है तो ये divisible नहीं होगा 3 से। with 5 we have 2 raised to n, 3 raised to n या फिर -2 raised to n, तो कोई मतलब नहीं है। if I go for 7 it gives us 1 raised to n minus 1 that is 0 irrespective of n, चाहे n odd हो या even हो 1 raised to n will be 1 only, so 1 minus 1 equals to 0। that means this number is divisible by 7, that is option number 4। अब नेक्स्ट देखते हैं, that is second last question, question number 24। question number 24 says n equals to 666 square plus a 3-digit number a square। if n is definitely divisible by which of the following numbers, इनमें से किससे definitely divisible है। तो अब ये ऑप्शन सॉल्विंग का क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करेंगे 222 से। तो 222 को अगर हम देखें तो 222 इसको डिवाइड कर देगा, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 0। नाउ whether this a is divisible or not is dependent on the value of a, because a can be written as a cube into 111 cube। ये कैसे लिखा है, you can check the indices। तो हमने इनको दोनों को अलग अलग कर दिया। now you can see that 222 में से ये तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया, 222 में से 2 into 111 है, तो ये 111 तो कैंसिल हो गया, सॉरी स्क्वायर है, 111 तो कैंसिल हो गया, बट ये 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा दैट विल डिपेंड ऑन दिस a। तो 222 के लिए हम लोग डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं। Same thing is for 444। 444 is 4 into 111। अब अगर हम 444 से इसको डिवाइड करें तो ये 666 क्या है, 6 into 111, यानी कि 6 square into 111 square। 6 square is 36 divisible by 4, तो ये तो हमें रिमाइंडर 0 दे देगा। ये देगा कि नहीं देगा अगेन इज डिपेंडेंट ऑन a, तो इसके लिए भी नहीं कह सकते।
लास्ट वन वाला पहले चेक कर लेते हैं, 4666 यहाँ पे पूरा डिविजिबल है, जीरो रिमाइंडर, ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, अगेन इज डिपेंडेंट ऑन ए। तो हम अगर इस नंबर को ना भी जाने 1 2 3 2 1 तो भी हम, बिकॉज हमने एलिमिनेशन कर दिए तीन ऑप्शंस का, तो यही ऑप्शन बचा, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। और अगर हम देखें सो 1 2 3 2 1 इज 111 का स्क्वायर, तो अब ये भी 111 का स्क्वायर है और ये भी 111 का स्क्वायर है, दोनों नंबर 111 का स्क्वायर तो है ही है, यानी कि अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो दोनों की दोनों हमें जीरो रिमाइंडर देंगे। दैट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय this n is divisible by 1 2 3 2 1 irrespective of the value of a, so this is the correct answer। बाकी इस नंबर की peculiarity देख सकते हो, 11 square is 1 2 1, 111 square is 1 2 3 2 1। अगर हम 4 बार 1 लिखें और उसका स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, 1 2 3 4 3 2 1 एंड सो ऑन। तो ये इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है। सो दिस अगर कहीं पे कुछ आता है और इसकी जरूरत पड़े, so you guys can use this thing। Let's go to the last question of this video series। So the last question is, एक 3 डिजिट का नंबर है, the digit of 3 digit number a are written in the reverse order to form another 3 digit number b। इसका मतलब जो a है उसको हमने रिवर्स किया और हमें b मिला which is also a 3 digit number। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर a x y z है तो z cannot be 0। तो भाई जब हम इसका रिवर्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, z y x, और अगर z 0 हो गया तो b won't be a 3 digit number। तो पहली चीज तो ये है कि z 0 नहीं होगा। दूसरा, it is given that if b is greater than a, that means this is greater than a, that means z is greater than x, and b minus a is perfectly divisible by 7, then which of the following is necessarily true। तो नंबर हम कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जी अगर हमारा नंबर है then we can write this thing as 100x plus 10y plus z। ये a हो गया और b क्या होगा, b will be zyx, that means it is 100z plus 10y plus x। हमें निकालना क्या है, हमें b minus a निकालना है। तो अगर हम b minus a निकालें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऊपर माइनस आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10y और 10y कैंसिल हो गया, x minus 100x is minus 99x, 100z minus z will be 99z, that means it is 99z minus x। this is b minus a, and if b is greater than a, इसका मतलब जो z है वो x से बड़ा है, z is greater than x, and this thing is perfectly divisible by 7। तो अगर ये perfectly divisible by 7 है, that means this thing has to be equal to 7, क्योंकि 99 तो divisible है नहीं, and division is what, cancelling numerator and denominator। तो अगर ये पूरा का पूरा 7 से divisible है, इसका मतलब 7 को कैंसिल होना पड़ेगा, 99 से कैंसिल हो नहीं सकता है, तो z minus x से ही कैंसिल होगा। और दो नंबर का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम 9 जा सकता है और मिनिमम 0 जा सकता है। So the only value possible for z minus x is 7। z is greater than x because b is greater than a, so z है ये और x है ये, z minus x की वैल्यू 7 होनी चाहिए। z can take 7, x can take 0, x 0 not possible, so this case is not possible। z 8, x1, z 9, x2, these are the only two cases which are possible। तो जो हमारा नंबर है वो x y z है, यानी कि अगर हम नंबर अपना लिखें, नंबर इज x y z, तो x की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 8 है, सो 1 8, एंड y से कोई लेना देना नहीं है, सो y कैन गो फ्रॉम 0 to 9। दैट मींस इस फॉर्म का जो सबसे छोटा नंबर होगा वो 108 और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा 198। और दूसरे वाले फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो x y z है हमारे पास, x can take 2
and z can take 9. This can go from 0 to 9. That means smallest number is 209 and the largest number is 299. तो जो हमें a की रेंज मिल रही है वो क्या मिल रही है, 108 से शुरू होके 299 तक जाना चाहिए। तो जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ये वो ऑप्शन हमको लेने हैं या उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये सारी वैल्यूज आ जाए, यानी कि 108 भी आ जाए और 299 भी आ जाए। अब चेक करते हैं। तो पहले वाले में 108 तो आ रहा है बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 100, बट लेस देन 299, तो 299 नहीं आ रहा बिकॉज इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू, तो ये बेकार हो गया। दूसरे वाले में 108 आ रहा है और 299 भी आ रहा है, तो ये सही हो सकता है मेरा। बाकी देख लेते हैं, वैसे देखने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू शुड स्किप एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले में, तीसरे वाले में क्या है, ना तो 108 आ रहा है, 299 आ रहा है, बट 108 नहीं आ रहा, तो ये बेकार हो गया। और तीसरे वाले में ना 108 आ रहा है, 299 आ रहा है, तो ये बेकार हो गया बिकॉज 108 नहीं आ रहा। So the correct answer to this question is option number 2. That completes our video series of divisibility. तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे, कुछ डिफरेंट वेरिएंट्स के क्वेश्चंस थे। So we feel that if you solve all these questions and go through the video solution, तो काफी कुछ डिविजिबिलिटी में एक strong hold मिल जाएगा and you will be pretty confident about divisibility. So guys, that was it for divisibility question series. I hope you enjoyed it, and if you liked it, please like, share and subscribe to our YouTube channel, and share it with your friends, and comment us if you have any suggestion or if you have any doubt in any question. We'll separately take that doubt and we'll resolve that doubt with you guys. So that's it for this thing. Happy learning. Thank you so much.